आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। WPL मींस वुमेन्स प्रीमियर लीग has just got finished. As far as winning is concerned, it was Royal Challengers Bangalore who took over Delhi and have won their first cup ever in the history of any league, either it's IPL or WPL. So Bangalore will be very happy the way they defeated Delhi yesterday. It was a close game. Delhi batted first to score 115 for 115 in 18.3 overs, and 113, sorry, in reply, Bangalore managed to win the game in 19.3 overs after scoring 115 runs for the loss of 2 wickets. So that is what the scenario of the WPL final. Smriti Mandana will be very happy the way they led the side. As far as the players of Bangalore are concerned, they were quite confident. And if I talk about Delhi, how fantastic the semi-final was. They defeated Mumbai by 5 runs. It was all over for Mumbai when they came out to bat. They have not managed to score 130 plus runs, and it was a very, very low scoring game. Final is also a low scoring game. It happens every now and then. We have seen number of occasions finals have been low scoring games, and now the cricket fever or the Mahakumbh of cricket is about to begin as far as the leagues are concerned, especially T20. So India is the hub of that league, and IPL will be beginning from 22nd of March, where Chennai and Bangalore will be taking on against each other in the first or the opening match of the season. The match will be played here in India only. It was expected that they can go into Dubai or UAE, wherever, but Jay Shah denied from all those rumors, news, whatever was hovering on social media, and the match will be played only in India because the election commissioner has announced the date of the election. In the seventh phase, election will be taken up from 19th of April to 1st of June, I think. Yes, 1st of June will be the time when the election will be conducted, and then 4th of June will be the result day. So that's how the situation will go on. And before heading to the cricket matches, it will be only fair to discuss the composition of the teams, how the teams are being balanced this time. We have already discussed one team in the previous show. Which team we discussed? It was Rajasthan Royals we discussed, or any other team? जी। तो मुझे लगता है सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और गुजरात जायंट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। Yes, Gujarat Giants was the team about which we discussed. Now तो we'll discuss two more teams today. जी, तो आज हमें कलकत्ता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को डिस्कस करना है। तो अब Right. Before discussing your thoughts on WPL and the success of the WPL, because अब देखो तो वुमेन्स क्रिकेट को उतना लोग देखते नहीं थे, लेकिन जब से लीग आई है, थोड़े घरेलू क्रिकेट ज्यादा हुए हैं, तो वुमेन्स क्रिकेट को भी सक्सेसफुल रिमार्क्स मिले हैं और लोगों ने थोड़ा सा देखना शुरू किया है। और कल तो क्राउड पैक था पूरा स्टेडियम, हाँ, निश्चित तौर से और वो लोग छक्के भी मार लेते हैं भाई। नहीं नहीं, निश्चित तौर से ये विमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है WPL, इससे महिला क्रिकेट को एक संजीवनी मिली है। और कहीं ना कहीं लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं, ये भी तेज खेल सकती हैं। पहले क्या होता था, जब ODIs होते थे तो ये कहा जाता था, अरे नहीं, इनका मैच जो है इसमें कम रन बनते हैं, वो मार नहीं पाते हैं, तमाम चीजें हैं, है ना। उनको झुठलाते हुए ये WPL को जिस तरह से महिला हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने इस तरह से दिखाया है WPL में, उस तरह से उन्होंने सब चीजों को दरकिनार कर दिया। और ये कम से कम
क्रिकेट के भविष्य के लिए एक अच्छा साइन है। हाँ नहीं, इसके लिए जय शाह को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने इस तरीके की चीजें सोची और इम्प्लीमेंट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। भारत जैसे देश में जहाँ इतना पूजते हैं क्रिकेट को लोग, वहां पे महिलाओं को क्रिकेट को इस तरह से बढ़ावा मिलते हुए देख पाना बड़ा अच्छा लगता है। तो और सब उभरती हुई खिलाड़ी हैं, चाहे स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत कौर काफी टाइम से खेले, दीप्ति शर्मा हो, जुएन गोस्वामी अभी गई। तो आप ये ना भूलें कि सबसे ज्यादा विकेट झूलन गोस्वामी ने लिए महिला क्रिकेट में, और सबसे प्रथम बार 200 रन का आंकड़ा भी महिला क्रिकेट में छुआ गया था। एक इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे रिकॉर्ड्स अच्छे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उतना तवज्जो देते नहीं थे कि अरे ठीक है, इनके मैच कौन ही देखता है, ऑल दोस थिंग्स। तो अच्छा, अगर हम स्कोर कार्ड की बात ना करें तो मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी होगी। हम कल के मैच के बारे में फाइनल से भी बता देता हूँ फटाफट आपको। जी स्मृति मंदाना ने 31 रन बनाए थे। एस डेवन, इन्होंने, देवयान, जी हाँ, ये सोफियान हाँ ये हाँ, सोफिया, सोफियान डिवाइन है ये। जी हाँ बिल्कुल। इन्होंने 32 रन बनाए थे 27 बॉलों पे। पेरी, एलाइज पेरी जो है, जी 35 रन बनाए थे इन्होंने। ऋचा घोष 70 रन बनाई 14 बॉलों में। एक्स्ट्रा कोई भी रन नहीं था, ये समझिए आप, ये डिसिप्लिन होता है। एक्स्ट्रा कोई भी रन नहीं। और कितने ओवर में? 19.3 ओवर में, एक भी एक्स्ट्रा नहीं। अगर भारत की मेन क्रिकेट टीम खेलती, आपको लगता है ऐसा होता? एक्स्ट्रा नहीं होता, मुश्किल होता। खैर, हाँ, निश्चित तौर से मुश्किल होता। बॉलिंग की बात कर लेता हूँ दिल्ली की तरफ से। मिराजना कैप, जी इन्होंने 4 ओवर फेंके, कोई जी हाँ मेडन नहीं, 20 रन, कोई विकेट नहीं। एल्स कैप्सी, जी इन्होंने भी फेंके करीब 3 ओवर, कोई मेडन नहीं, 13 रन, कोई विकेट नहीं। जी शिखा पांडे, वाओ क्या बॉलिंग है, 4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 11 रन, एक विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं ये। जबरदस्त। और इसमें एक टिटार साधु है, हाँ जो एक देखते। उभरता हुआ नाम है अच्छा, बंगाल हाँ से। हाँ हाँ, बंगाल से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, राधा यादव, जिनको आप टी साधु के नाम से जानते हैं। तो बहुत अच्छी खोज है। राधा यादव ने 1 ओवर फेंका और बड़ी महंगी साबित हुई। 18 रन दिए उन्होंने। यही मैच जी का रुख बदल गया, क्योंकि 20वें ओवर तक मैच का चला जाना, ये दिल्ली के लिए अपने आप में बड़ी बात थी। 115 रन के आसपास का स्कोर कुछ होता नहीं 20 ओवर में। निश्चित अरुण तौर से। अरुंधति रेड्डी, 3.3 ओवर्स, 26 रन, मेडन कोई नहीं। ठीक है। जस्ट जोनाथन, ये ऑस्ट्रेलिया के शायद हैं, ऐसा लगता है नाम जी, से। जेस जोनाथन। 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। मीनू मानी, 2 ओवर 12 रन। ठीक है, तो ये रहा बेंगलोर का स्कोर कार्ड बैटिंग में, और दिल्ली की बॉलिंग। एक बार मैं आपको ले चलता हूँ उधर थोड़ा सा, जहां मैं आपको बेंगलोर का कुछ बता पाऊं, माफ करिए, दिल्ली का। दिल्ली ने 113 रन बनाया था, आपको पता है। जी ग्लैनिंग, यानी कि मैक ग्लैनिंग जो है, ये चल नहीं पाई। 23 रन बनाए इन्होंने। जी शिफाली वर्मा 44 रन और 27 बॉलों में मात्र। हाँ, तेज खेलती हैं ये। जमेमा रॉड्रिक्स खाता नहीं खोल पाई फाइनल में। ये खराब मोमेंट होता है, अगर फाइनल जैसे बड़े मैच में आप अपना खाता भी ना खोल पाए। तो ये नर्वस इतनी थी, या तो बड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, जिमेमा रॉड्रिक्स बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन वही है, दिन होता है। एलएस कैप्सी, कोई रन नहीं। मेराजना कैप 16 बॉलों पर 8 रन। जनसन 11 बॉलों पे 3 रन। राधा यादव 9 बॉलों पे 12 रन। मीनू मानी 3 बॉलों पे मुझे 5 रन। लगता है आज टी साधु को इस मैच में शायद खिलाया नहीं नहीं, गया। नहीं खिलाया। अरुंधति हाँ, 13 बॉलों में 10 रन। शिखा पांडे 5 खिलाना बॉलों में चाहिए 5 था रन। फाइनल में, लेकिन खिलाया नहीं। हाँ लेकिन बिल्कुल। बहुत अच्छी खोज है वो, कम से कम भारतीय क्रिकेट के लिहाज से। तानिया भाटिया, कोई रन नहीं। एक्स्ट्रा 3। तो दिल्ली की जो कंडीशन है, वो इसी वजह से गड़बड़ थी कि रन उन्होंने बनाए नहीं। रेणुका सिंह ने 2 ओवर में 28 रन दिए। ठीक है।
मालूनी 4 ओवर में 23 रन दिए, एलिस पेरी 2 ओवर में 14 रन, एस डेवन 1 ओवर में 9 रन, ठीक है। वेरहैम 3 ओवर 16 रन, श्रीलंका पाटिल 3.3 ओवर 12 रन, आशा सुभाना 3 ओवर 14 रन। ये स्टेटस था पूरे मैच का। एक भारतीय पर्सपेक्टिव से देखें, आशा शोभना ये भी बहुत बड़ी डिफाइंड है। आशा शोभना और टिटार साधु ये दो ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में आपके पास सब कुछ है, पूरा एसिड है आपके पास। शेफाली वर्मा है, जेमिमा रोड्रिक्स हैं, हरमनप्रीत हैं, पूजा वस्त्रकर है, सब हैं। लेकिन जब गेंदबाजी, क्योंकि आप किसी मैच को जीतते हैं तब गेंदबाजी से उस मैच को जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टी साधु और आशा शोभना ये बहुत अच्छी खोज है भारतीय क्रिकेट के लिए, कम से कम। बिल्कुल। तो श्रीलंका पाटिल जो है, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया है, इनको दिया गया है अवार्ड। जी दीप्ति शर्मा एमवीवी, जी एमवीपी यानी कि मैन ऑफ द प्लेयर, नहीं, सॉरी ये मैन, बल्कि वुमेन एमवीवी है ये, वुमेन वुमेन मैन ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जी ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक जी है। हाँ और सोफी, कौन है ये लड़की, सोफी मालूनी POTM यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जी। इतना खतरनाक लिखते हैं लोग। तो ये स्टेटस था। चलिए अब हम तो अपने फिलहाल हम अब कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, और अब जो हमारी मेंस टीम है उनका IPL शुरू हो रहा है। तो इंडियन प्रीमियर लीग का संस्करण 22 तारीख को इसका आगाज हो रहा है, और 22 तारीख को चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम चिपॉक में चेन्नई और बेंगलोर का आमना सामना होगा। उससे पहले हम स्क्वाड की चर्चा कर रहे थे। गुजरात जायंट्स का स्क्वाड एक बार हमने बता दिया था, लेकिन फिर एक बार जब स्क्वाड की चर्चा चल रही तो मुझे लगता है एक बार और हम फटाफट उनको भी रिवाइज कर दें। तो शुभमन गिल कप्तान है, ये बैटर की बात हो रही है। डेविड मिलर, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर। अब ऑलराउंडर्स में शाहरुख खान, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, हसमतुल्ला उमरजई, राशिद खान। विकेट कीपर्स रॉबिन मिंज, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा। अब बॉलर स्पेंसर जॉनसन, कार्तिक त्यागी, जोशुआ लिटिल, दर्शन नलकंडे, नूर अहमद, रवि साई निवासन साई किशोर, जयंत यादव, मोहित शर्मा, सुशांत मिश्रा, उमेश यादव। तो ये है गुजरात की टीम, जो हमने आपको पिछले भी उसमें बता दी थी। अब हम कलकत्ता की तरफ चलते हैं, क्योंकि गुजरात पे हमने चर्चा भी थोड़ी बहुत कर ली थी, है ना। तो श्रेयस अय्यर कप्तान है, मनीष पांडे ये बैटर ही चल रहे हैं, मनीष पांडे, रोमनदीप सिंह, नीतीश राणा ये वाइस कैप्टन है। लिखा नहीं है, लेकिन ऑफिशियली घोषणा कर दी KKR ने। रिंकू सिंह, साकिब हुसैन। अब ऑलराउंडर्स की बारी आती है। अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, शर्फेन रेदरफोर्ड, अंकुश रघुवंशी, एंड्रे रसल, सुनील नरेन। अब विकेट कीपर की बात आती है। शेखर भरत, रहमतुल्लाह गुरबाज, फिलिप सॉल्ट। अब गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, दुष्मंथा चमीरा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, मुजीबुर रहमान, हर्षित राणा, सुयश शर्मा। तो ये टीम है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या लगता है कलकत्ता का स्क्वाड देख के।
एक बात बताओ, ये जो टीमें हैं इतने फॉरेनर्स को ले रहे हैं अच्छे अच्छे, उनको मैनेज कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल विषय है। आप केकेआर में देखे कौन कौन है? एंड्रे रसल है, सुनील नरीन है, मिचेल स्टार्क है। इसमें से मिचेल स्टार्क शायद खेलेंगे नहीं, क्या नहीं खेलेंगे? सबसे महंगे प्लेयर है, ऐसे कैसे हो सकता है? खेलेंगे, खेलना वो चाहिए। ट्रम्प कार्ड हैं, हम्म गौतम गंभीर ने बताया है। और हम्म अच्छा, गौतम गंभीर जब केकेआर से जुड़े थे तो सुनील नरेन कई बार ओपन ओपन करते थे, करते थे, एब्सोल्युटली। तो क्या वो सोच गंभीर दोबारा केकेआर के थिंक टैंक में लाएंगे? आई होप सो, क्योंकि धोनी की तरह ही गंभीर स्टिक नहीं रहते डिस्टेंस पे। हाँ सॉरी, उनका ये है स्टिक रहते। धोनी क्या है, कुछ भी बदलाव कर देते हैं समय के हिसाब से। बट गंभीर थोड़ा ट्रेडिशनल सोचते हैं, लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक चल रहा है तो इसको करने देते हैं। तो शायद गंभीर उस मोड में आए और एक बार फिर से सुनील नारायण आपको ओपनिंग करते हुए दिखे। अच्छा, हम लोग तो उनको नारायण कहते हैं बट उनका नाम नरीन है असल में। लेकिन भारत में थोड़ा सा इन नामों को लेके कुछ इधर उधर हो जाता है, वेस्ट इंडियन नेम है तो हम लोग नारायण नारायण करते रहते हैं बाय द वे। तो सुनील नरेन का ये सीन है। अच्छा, क्या लगता है स्क्वाड पे? हमने चर्चा कर ली, क्या लगता है यदि हम प्लेइंग 11 अपनी तरफ से डिसाइड करें? अच्छी बैलेंस टीम बनाने के लिए इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसको हटाएंगे? अच्छा, शाकिबुल हसन कौन, बांग्लादेश वाले वही है या फिर कोई नहीं, दूसरा? वो नहीं है, वो साकिब हुसैन है ये। अच्छा हाँ, शाकिब, तभी मैंने कहा ना एक नया नाम सुनने को मिला। शाकिबुल का तो हाँ, अलग मामला था। तो मुझे लगता है, तो वो मैं भारत के ही पहले हैं। अपनी राय से अवगत करा दूं। मुझे लगता है रहमानुल्लाह गुरबाज पहले की तरह खेलेंगे, खेलेंगे बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है, और उनसे सलामी ओपन ही बल्लेबाजी, कराई जाएगी, जी हाँ। हाँ, कराई जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। हम्म। और अय्यर अ, 3 पे खेलेंगे एज ऑलवेज। अच्छा, गुरबाज के साथ शुरुआत कौन करेगा? ये नरेन? ये ट्रिकी हो सकता है, नरीन आ सकते हैं। यदि अदर देन नरेन, दैट किसी स्पेशलिस्ट बैटर के साथ जाएंगे। नहीं, स्पेशली बैटर के साथ यदि आप जाते हैं तो आपके हम्म पास ओपनर के ऑप्शन है ही कौन? हम्म, श्रेयस अय्यर अ- नहीं कर अय्यर सकते, को आप कराएंगे नहीं? मनीष पांडे, नहीं कर सकते, बीच में कर सकते हैं, हालांकि ऐसी कुछ नहीं है, बट वो बीच में ही खेलते हैं। रोमनदीप सिंह भी नहीं कर सकते, नीतीश हम्म। राणा, रिंकू, मुझे लगता है, रिंकू सिंह भी नहीं कर सकते हैं। नरेन के साथ ही जाएंगे, होप सो। क्योंकि जो मुझे समझ में आ रही चीजें, हम्म या वेंकटेश अय्यर से भी किया जा सकता है। हाँ, जा सकते हैं ऑलराउंडर में मेरे को ऐसा वेंकट। लगता है वेंकटेश अय्यर के पास शायद जाए। हम्म तो चलिए, फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि वेंकटेश अय्यर ही होंगे, आई थिंक। तो भी दो, हाँ, ये हो गए, 3 पे आएंगे आपके श्रेयस अय्यर, 4 पे राणा जी, और 5 पे रिंकू हम्म आएंगे। इसमें किसी को कोई शक शुबा तो है ही नहीं। और बिल्कुल। 6 पे एंड्रे रसल आएंगे, और इसका अर्थ ये हुआ कि आपने 2 फॉरनर खिला लिए हैं, गुरबाज और रसल के रसल। रूप में। हम्म अब बचे आपके 2 फॉरनर, आई थिंक सुनील नारायण एक और में आप शायद मिचेल स्टार्क के एक साथ में जाएं। आप सुनील नरेन को बिल्कुल खिलाएंगे, और जो कि आपके 7 नंबर पे बल्लेबाजी भी करेंगे। और हम्म बचे बचे आपके जो है 4 प्लेयर, उनमें मैं 3, आई थिंक, जो तेज गेंदबाज हैं उनमें मैं चेतन सकारिया को रखूंगा, मिचेल स्टार्क को रखूंगा। तो आप भी सहमत होंगे मेरी हाँ बिल्कुल। सोच से? तो मनीष पांडे की जगह नहीं बन रही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी। हम्म मनीष पांडे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मैच तो नहीं ये में ना ही खिलाए, उनको जगह तो दी जाएगी उनको। नहीं, फिलहाल जो शुरुआती हाँ, प्लेइंग 11 शुरुआती है, जो मैचेस है उसमें शायद मनीष पांडे खेलते नजर नहीं तो आएंगे आपको। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती और नरेन को स्पिन के लिए खिलाया जाएगा। ये, हम्म हाँ बिल्कुल। और 3 पेसर के साथ जाएगी, वो चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा
के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, इनके पास एक्सपीरियंस्ड और कौन है पेसर में, वैभव अरोड़ा के अलावा? इंडियन स्पिनर, पेसर पेसर हाँ इंडियन पेसर ना, हम्म हम्म, हर्षित राणा एक हैं, वो भी ऐसे ही हैं, कोई नहीं है। एक्सपीरियंस कोई नहीं है, दिक्कत है। हम्म, बॉलिंग में थोड़ी दिक्कतें हैं इनके साथ। तो गेंदबाजी में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। चेतन सकारिया, वैभव अरोड़ा के साथ ही संभवतः जाना चाहिए मिचेल स्टार्क के साथ, या ये भी हो सकता है मिचेल स्टार्क और मिचेल स्टार्क खेलेंगे, चेतन सकारिया वैभव अरोड़ा में से कोई कोई एक एक खेलेगा, खेल है, ये और पॉसिबिलिटी हो सकती सुयश को भी खिला लेंगे, नरेन को भी खिला लेंगे, है। और उधर वरुण को भी खिला लेंगे, क्योंकि रसल ऑलरेडी एक स्पिन करते हैं, फास्ट विकेट बल्कि जी पेस मीडियम। का, हाँ मीडियम पेस का एक विकल्प एंड्रे रसल है। तो मुझे लगता है बैलेंस शायद बेहतर बन जाए। क्या आपके हिसाब से भी यही प्लेइंग 11 है, या मोरलेस यही होने वाली है। थोड़े मोड़े चेंजेस अप फ्रंट अगर होंगे तो होंगे, अदर देन दैट मोरलेस यही टीम होने वाली है। कुछ के खास तो बदलाव नजर आता नहीं है। अब शुरुआती जिस तरह से हमें चेन्नई के साथ कोशिश करते हैं चलने की। अस्टस मिल रहे हैं, राइट। तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो स्क्वाड है उसकी यदि हम बात करें तो बल्लेबाजी के यूनिट की पहले बात होगी तो अजिंक्य रहाणे का नाम वहां सबसे ऊपर है। शेख रशीद एक भारतीय उभरता हुआ सितारा, ये अंडर ऋतुराज 19 में अच्छा खेला था इन्होंने। जी, ऋतुराज गायकवाड़, समीर रिजवी, बहुत चर्चा है इस मिडिल ऑर्डर बैटर की। काफी गरीब घराने से आए और उसके बाद एक अच्छी जी रकम आईपीएल में मिली। बहुत रकम मिली, और उसका कारण है कि मिडिल में बहुत अच्छा खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने की इनके अंदर काबिलियत है। तो ऑलराउंडर्स में बात करते हैं, डेरेल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, निशांत सिंधु एक और भारतीय ऑलराउंडर, मोइन अली इंग्लैंड से आते हैं, रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड से आते हैं, शिवम दुबे सब जानते हैं, बहुत नाम कमाया है पिछले साल से लेकर के इस साल तक। बीच में कुछ फिटनेस की समस्याएं आई हैं, यदि उनको छोड़ दें तो। मिचेल सेंटनर एक और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा। विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो अर्ली अविनीश, ये वो है जो अंडर 19 जो टीम हमारी गई थी उनके साथ ये विकेट कीपर गए थे और 11 में भी थे। तो डेवोन कॉनवे न्यूजीलैंड से भी आते हैं, MS धोनी कप्तान है। गेंदबाजी में RS हंगेकर यानी राजवर्धन हंगरकेकर, दीपक चाहर, अजय जाटव मंडल, तुषार देशपांडे, मतीशा पथिराना, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, महेश तीक्षणा, मुकेश चौधरी। तो ये है। अब धोनी ने इनमें से टीम तो कुछ अच्छी मैच, बनाई। धोनी ने टीम कंपोजिशन तो अच्छा लिया है भाई। हाँ इसमें से कुछ प्लेयर शुरुआत में खेल नहीं पाएंगे, आपको पता ही होना चाहिए। डेवोन कॉनवे का नाम है उसमें, और उसमें नाम है मतीशा पथिराना का। राइट, तो इनको फिलहाल हम हटा देते हैं। हटा देते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ओपन करेंगे अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़, जी इसमें कोई शक जी शुबा हाँ नहीं है। जी, नंबर 3 पे नंबर 3 पे ऑप्शन बता देता हूँ आपको, 3 ऑप्शन है आपके पास, रचिन रविंद्रा, डेरेल मिचेल, मोइन अली। नो डाउट रचिन रविंद्रा विल बी देयर। जी 4 पे, अब 4 पे मोइन अली और डेरेल मिचेल, नहीं समीर रिजवी आई थिंक नंबर 4 पे आएंगे, अगर उनकी इतनी चर्चा है, इतना नाम है उनका तो। जी उसके 5 बाद पे तो उसके शिवम दुबे, उसके बाद शिवम दुबे रहेंगे। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। अच्छा 4 पे रिजवी बताया आपने ना, अच्छा 5 पे ये हो गए, और 6 पे धोनी, 6 पे 7 पे धोनी, जडेजा, जडेजा, बिल्कुल। और
अब जो आपके बॉलिंग बॉलिंग मेरे हिसाब से बॉलिंग एसिड होना चाहिए 4 का, हम्म, तो क्या कंपोजिशन 2-2 या 3-1? धोनी है, कुछ नहीं कर सकते, डिपेंड ऑन पिच। अगर 3-1 होगा तो देखो, एक तो देश पांडे है, जी वो खेलेगा नो बिल्कुल डाउट। एक और लड़का है, नाम उसका मुझे एग्जैक्टली याद, दीपक चाहर, दीपक चहर, यस ही इज गोइंग टू प्ले। बिल्कुल ठीक, अगर 3-1, एक और फास्टर है उनका, मुकेश है क्या? जी जी मुकेश हाँ, तो चौधरी मुकेश चौधरी विल आल्सो बी देयर। अगर और 3-1 के बाद स्पिनर में फिर इनके पास बचता कौन है? तीक्षणा। तीक्षणा अभी शायद अच्छा अवेलेबल है, राइट। एक चीज है, लेकिन आपने फॉरनर मुझे लगता है ढंग से पिक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब हम फॉरनर की बात करें तो 3 पे आपने रचिन रविंद्रा को खिलाया है हम्म, और उसके बाद आपने बीच में फॉरनर नहीं अच्छा, रखे हैं। फॉरनर छोड़ दिया मैंने, हाँ। तो 3 फॉरनर और समस्या मुश्किल ये है, है मुश्किल। मेरे हिसाब से, मैं हम्म, अपनी बात करूं, मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे की जगह शायद इस स्क्वाड में ना बने, ये मेरा अपना मानना है। हाँ, मगर धोनी ने इनको क्यों? लिया है तो मे बी। क्योंकि रचिन से ओपन कराया जाएगा मेरे हिसाब से, हम्म, या अगर रहाणे की जगह बनती है हम्म, तो समीर रिजवी की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि हाँ रहाणे पे रख भी लें, रहाणे और गायकवाड़ ओपन करेंगे, रचिन नंबर 3 पे 3 पे आ खेलेंगे, जाएंगे, ठीक है। मिचिल और मोइन अली में से कोई आपको एक किस खेलेगा, एक के साथ जाना होगा राइट। अराउंड। यदि हम दोनों को रख लें, हम्म, यदि हम दोनों के बारे में भी सोच लें, तो क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर हैं, तो मेरे को हम्म, लगता है 3 पे रचिन, 4 पे मिचेल 5 पे मोइन। और मोइन अली की जगह मेरे हिसाब से बन नहीं रही है फिलहाल, हम्म, क्योंकि क्या, और ये पिच के हिसाब से होगा, देखिए रचिन खेलेंगे ये आपको पता है, लेकिन डेरिल मिचेल और मोइन अली में ये पिच के हिसाब से कंपोजिशन होगा, जहां पेस विकेट होगा वहां मिचेल को खिलाया जाएगा, जहां स्पिन विकेट होगा, क्योंकि मोइन अली से तो वैसे भी गेंदबाजी बहुत कम कराई जाती हाँ, काफी कम। है ना। हम्म, तो मेरे हिसाब से मिचेल और रविंद्रा दोनों को रख लिया जाएगा यहाँ पे, और एक विदेशी आपके होंगे तीक्षणा, तीक्ष्ण, राइट। और संभवतः मुस्तफिजुर को भी खिला लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, अच्छे बॉलर हैं, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे कई बार और डालते हैं वो। यदि मुस्तफिजुर को आप नहीं खिलाते हैं तो थोड़े बैटिंग लाइनअप को और गहराई प्रदान कीजिए कि जो है 3 पे रविंद्रा, 4 पे डेरल मिच, 4 पे मोइन अली को किया जा सकता है, क्योंकि मोइन अली को अब नीचे नहीं धकेल सकते ज्यादा। हाँ, बहुत नीचे नहीं खेल सकते, अच्छा वो। 5 पे डेरल मिचेल और हम्म, 6 पे शिवम दुबे, 7 पे धोनी, 8 पे जडेजा, जडेजा। और आपके पास 3 जो ऑप्शन है वो तीक्षणा और मुकेश और और दीपक दीपक चाहर, चहर। हम्म, यहाँ से भी आप जा सकते हो। कुल मिला के मोइन अली और मुस्तफिजुर में से आपको एक को रखना पड़ेगा, और जब मतीशा पथिराना आएंगे तो फिर उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ यही कि मोइन अली और डेरिल मिचिल में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि रविंद्रा खेलेंगे ही खेलेंगे। अच्छा इन तीनों के साथ एक प्लस पॉइंट है, सचिन रविंद्रा भी गेंदबाजी करते हैं, डेरिल मिचिल भी करते हैं और मोइन अली भी करते हैं, हम्म, और कॉनवे आएंगे तो स्थिति थोड़ी सी शायद अलग हो, रहाणे बाहर जाएंगे और कोई एक फॉरनर कोई एक इंडियन शायद ऐड हो जाए बीच में। तो ये चीज है, तो क्या नहीं, लगता है हाँ, आपको? वही मैं कह रहा था कि जब कॉनवे आ जाएंगे फिर क्या होगा। हम्म, सभी ने टीमें बड़ी अजीब तो अब अजीब ये बना बताइए, रखी है। आपको मैंने 3 टीमें बताई, हम्म, क्या आपका सोचना है? अभी तीनों टीमों को देख के सबसे बैलेंस टीम कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके साथ समस्याएं वही बैलेंस है, बट फिर भी चेन्नई सुपर किंग इज लुकिंग बिट सॉलिड, बिट कंपोज्ड, क्योंकि उनके साथ धोनी है, तो एक प्लस पॉइंट है, ही कैन मैनेज द सिचुएशन क्वाइट नाइसली एट द एंड ऑफ द डे। तो वो दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। मुझे लगता है चेन्नई अभी तक की सबसे ठीक टीम लगी तीनों में, बैलेंस के हिसाब से। बाकी टीमें दोनों अच्छी, गुजरात हो और केकेआर डिस्कस किया हमने, वो भी टीम अच्छी है, बट चेन्नई थोड़ी सी बैलेंस लग रही है, और कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना शायद ना पड़े उनको। अच्छा इस आईपीएल में आप किसको सपोर्ट करेंगे?
I always used to go with Mumbai Indians. मुंबई इंडियंस, Yes. जी हाँ, मुंबई इंडियंस को आप सपोर्ट करिएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। मैं चेन्नई के साथ हूँ। मैंने पहले ही कह दिया है, पहले मैंने अनाउंस कर दिया है कि मैं यदि मतलब वैसे हमारा कवरेज पूरी आईपीएल पे रहेगा, लेकिन यदि एक टीम हर आदमी अपनी पिक करता है तो वो मेरी सीएसके है। नहीं, निश्चित Mumbai तौर से। has been, first team of mine in IPL from the beginning of the IPL, and I have not changed at all. जी, निश्चित तौर से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने बात कर ली है आईपीएल की। अब मुझे लगता है कुछ 2 खबरें और आ रही हैं, उन पे हम जल्दी चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक बार बता देता हूँ, है ना, हेडलाइन में। आधे घंटे का शो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इतना जी, समय लगता है टीम बस डिस्कस करने में। हाँ, अब हम चलते हैं। तो श्रृंखलाएं 2 श्रृंखलाएं वहां चल रही हैं। एक श्रीलंका और बांग्लादेश की श्रृंखला चल रही है। वहां पे 2 ओडीआईज हो चुके हैं ऑलरेडी। बांग्लादेश जी, तो बांग्लादेश ने और लंका ने एक मैच आपस में बांट लिया है। पहला मैच बांग्लादेश ने जीता था और दूसरा श्रीलंका ने। तो वहीं पे आयरलैंड और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक श्रृंखला प्रगति पर है। 2 मैच हो गए हैं शारजाह में। तो 2 टी20 हो चुके हैं। पहला मैच आयरलैंड ने जीता था और दूसरा मैच अफगानिस्तान 10 रन से आयरलैंड को हरा के जीत चुका है। श्रृंखला 1-1 से बराबर पे खड़ी है ना। ये श्रृंखलाएं चल रही थी जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी था। अंत में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? उधर मधुशंका जो श्रीलंका के एक अच्छे बॉलर हैं, वो जो उनका 32वां मैच है बांग्लादेश के विरुद्ध, वो चोट के कारण नहीं खेलेंगे। तो जी, दिलशान मधुशंका। ये एक सेटबैक है बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए। दिल्ली से लुंगी इंगिड़ी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। उधर गुजरात से शमी बाहर हैं, आपको बताया था पहले। जी हाँ, गुजरात से मोहम्मद शमी बाहर हैं, बिल्कुल सही आपने बताया है। तो काफी प्लेयर, अच्छा, इंग्लैंड के प्लेयर बहुत जल्दी जल्दी रूल आउट हो रहे हैं, जिनमें नाम आता है मार्क वुड का, उसमें नाम आता है हैरी ब्रुक भी दिल्ली से विदा हो चुके हैं। तो इंग्लैंड के प्लेयरों को साइन क्यों किया जाता है? मेरे को समझ नहीं आता, जब वो खेलते नहीं है तो क्यों कर लेते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। तो इस नहीं सारी होना चीजें चाहिए। हैं, देखते हैं। फिलहाल मुझे लगता है अब हमें यहीं पे कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करना चाहिए, और अगर कुछ है तो बताइए। अभी तक अच्छा, सुनील गावस्कर ने कहा है कि जो रणजी के प्लेयर हैं उनकी फीस ट्रिपल होनी चाहिए। जी, फी टू बी ट्रिपल्ड, जितनी भी है उससे ज्यादा 3 गुना और बढ़ानी चाहिए। तो अच्छा मूव है वैसे ये। हाँ, इससे लोग रणजी ट्रॉफी की तरफ आकर्षित होंगे। और वो जो अभी बीच में एक स्कीम आई टेस्ट प्लेयर्स के लिए, वो अच्छा है। वो उससे प्लेयर एटलीस्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अच्छी चीजें हैं। अच्छा, लुंगी नगीडी बाहर हो गए, ये तो आपने बता दिया। जी, अच्छा, एक बात बताइए, कनाडा और यूएसए वगैरह में आईपीएल का जो लाइव है स्ट्रीमिंग है, वो क्रिकबज़ पे दिखाई जाएगी। ठीक है। ये नई बात है। कब, और मतलब कब? जब भी आईपीएल होगा 22 तारीख से, तो वो हाँ, क्रिकबज़ पर लाइव एयर होगा। मतलब ये क्रिकबज़ पे दिखाया जाएगा, मतलब कमेंट्री के साथ, जिस तरह से टीवी पे देखते हैं हम, उस तरह से। तो ये कैसे? बाहर की कंट्री की बात कर रहा हूँ ना मैं, कनाडा अच्छा, और यूएई। बाहर, अच्छा, बाहर में। यहाँ तो जियो सिनेमा पे आएगा, और जी शायद स्टार स्पोर्ट्स के पास जी, भी स्टार स्पोर्ट्स पे भी आएगा, क्योंकि मैंने कल टीवी ऐड पे। सुना था। हाँ, टीवी पे स्टार तो स्पोर्ट्स पे आएगा। उन्होंने नहीं, टीवी पे भी शायद जियो वाले भी देंगे, बट स्टार वाले भी देंगे, हाँ, ये दोनों कैसे क्योंकि दे रहे हैं? दोनों का टाई अप हो गया है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, देखते रहिए क्या हाँ, होता है। बाकी हॉटस्टार पे नहीं आएगा।
नहीं आएगा। नहीं, तभी मैंने कहा ना अच्छा खाली टीवी पे। अच्छा, ओके चलिए। तो तो ये कुछ स्टेटस थे, ठीक है। और कोई न्यूज आ, आईपीएल के यदि हवाले से कुछ अगर आता है तो बताइए। आई अच्छा, मुल्तान सुल्तान पीएसएल के फाइनल में पहुंच जी गई है जी हाँ, वो बिल्कुल सही है। चौथी बार, ठीक तो है। पाकिस्तान सुपर लीग में हम्म, मुल्तान सुल्तान चौथी बार इस पाकिस्तान सुपर लीग के संस्करण जो जब से शुरू हुआ है तब से चौथी बार ये इसको मिला के फाइनल में पहुंची है। अच्छा, ये आईसीसी जो है, ये जो स्टॉप क्लॉक रूल था ना, जी हाँ, उसको परमानेंट करने जा रहा है, हाँ, बिल्कुल सही उसको है। स्टार्ट करने जा रहा है एकदम परमानेंटली, और ये सही है, मैं समझता हूँ। हम्म, इससे टाइम बचेगा, ठीक है, और लोग क्रिकेट को सीरियस तरीके से लेंगे। अभी लगता है अरे ठीक है, ये करो वो करो, बट ये आने से मुझे लगता है अच्छा होगा, ठीक है। जी हाँ, चलिए, ऋषभ पंत खेलेंगे ही, आपको पहले बता दिया था मैंने, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सब मुझे चीजें हैं। लगता है कुछ है नहीं, है ना। हाँ, ये थ्रेमन एक प्लेयर है, हाँ, लाहिरो थिरिमने इनका इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हो गया है, कार बिल्कुल, एक्सीडेंट हो। तो ये श्रीलंका के और पूर्व क्रिकेटर हैं। और मुंबई ने अपना 42वां रणजी ट्रॉफी फाइनल जीत लिया है। तो ये सब चीजें ये थी, सब चीजें हैं, है ना। तो बिल्कुल। चलिए फिर हम मिलते हैं वाइंड अप अगले करते हैं। सेगमेंट में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।